Good evening, everyone. I'm Dr. Siddhant Sehgal. On behalf of SSRH, it gives me immense pleasure to welcome you all to these Zoom sessions. Good evening, sir. Good evening. And the reasons that we are running these sessions is that you all know because of this lockdown, there is a kind of negative or somber and a very pessimist mood all around. And our founder, Dr. Emil Sehgal, he was one of the most positive man because he faced so much of struggle and criticism in his life that the only option he had was to remain positive. And I think this is the best way we can make use of this time. And quoting a few lines of late Irfan Khan, the most talented actor that we lost day before yesterday, that when life gives you a lemon, make a lemonade. जब जिंदगी आपको नींबू दे तो शिकंजी बना लो, because that's the only option you have. और उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं हम लोग. So we hope that we'll be able to make a nice lemonade for you. And I have been doing these sessions with Gujarat, Punjab, and thanks to the faculty of SSRH that they have been so supportive and encouraging. So I had a talk with Dr. Jitu. Hats off to him that he has taken this initiative to bring these sessions to Maharashtra also. So to make sure that the session is conducted smoothly, I would request all of you to please keep yourself on mute. If you have any doubts, you can raise your hands. There is an option of raising hand in Zoom, and we'll have a QA session for like 15 minutes at the end of the session. Also, I know this is a time of the day when most of you will be in bed or in a comfortable position, and it might not be comfortable for you to keep your videos on. But I would request that if you can keep them, it would be really nice because we should know that who all are there. And so, without wasting much time, I would request our teachers. Today we have Dr. Sanjay Sehgal, who is the chief faculty of SSRH and one of the most senior practitioners of this method. Along with him, we have Dr. Prem Sharma. You all are familiar with them. So now I would request Dr. Prem Sharma to start the session. Sir. Good evening, Siddhant. Good evening, Dr. Sanjay Sahagavi, and all my participants. Today, I would like to first know about everyone that how the people are doing in the lockdown. I hope that you might be doing very well, and look forward that you are doing something very creative and something very positive. And nobody knows that how long it is going to be there with us, this lockdown. So as you have already came to know that we are just using this opportunity to have something creative, something positive. Actually, what happens, it's not everybody's reaction. No doubt, there are a number of people, there may be a number of people who might make it an opportunity to learn something new, to come across something new thing, and it's very, very amazing experience. But at the same time, some people are there who are really are not that doing that well. There might be some people who are just, as you know, that it is dark all around, it's lockdown all around. People are stuck up at home or wherever they are stuck up. Transportation, no communication. So
as you know that everybody is an individual and everybody has its own reaction toward the same stimuli. Whatever the condition or the circumstances are, it may be the same, but everybody is going to react in its own way. So we have some patients as well during this lockdown. Some people are really got depressed, some are very sad, some are into the even more worse condition. So I came across a small case which I would like to share with you people. So I think that will be a new experience. It is a very small case. It's a case of a resident scholar who is residing away from New Delhi in some other city of India, is far off from here. And she was there for quite some time doing some medical degree there. But what happened, as it was expected that it is going to be locked down on 22nd of March. Before that, the colleges were closed and people do came down to their respective homes. What happened? अब ठीक है सिद्धांत, अब आवाज ठीक आ रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है प्रेम बाबू. चलो ठीक है. It's already there. What happened actually that this young girl from the hostel came to his house where she stayed in Delhi. Actually, what happened, as soon as she reached in Delhi, every damn thing was closed, right? And no movement. One has to stay home. There was the Janta curfew, and then the lockdown, and first lockdown, and then the second lockdown, and still no hopes ahead, no positivity. What happened actually during this lockdown, she started getting very sad. धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो उसको डिप्रेशन स्टार्ट होता गया और ultimately what happened, she started feeling very nauseated, very depressed and very indifferent to his family. किसी के साथ मिलना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करनी, अकेले अकेले सुबह उठते ही परेशानी शुरू, क्या कब जाऊंगा मैं हॉस्टल, कब मेरा ये लॉकडाउन खुलेगा, मतलब भाई आई एम हियर. तो शी फील वेरी वेरी सैड, डिजेक्टेड, सैड, कोई एक्टिविटी नहीं कुछ करने को, कुछ काम नहीं करने को, एंड नोबडी इज देयर टू टॉक टू. किसी के घर भी नहीं जा सकते आप, ना कोई आपके पास आ सकता है. तो हुआ क्या, यू आर ऑलमोस्ट ऑल अलोन. देयर आर नाउ डेज यू नो दैट द न्यूक्लियर फैमिलीज, number of people, number of family members are very less. तो कितना कोई एक दूसरे से बातें करेंगे, करते भी तो बड़ा मुश्किल होता है कि she can talk to her mother who is already suffering from a sort of depression. तो वो कोई बहुत ज़्यादा विवेशियसनेस है नहीं उसकी टॉकिंग में, बल्कि उल्टा उसको भी वो ऐसा बताती है कि ये जो मेरी बीमारी है ये भी ऐसे ही शुरू हुई थी जैसे तेरे को शुरू हुई है. You may be going to suffer from the same kind of sickness whatever she is having at the moment. तो वो और भी घबराती, धीरे धीरे भूख लगना बंद हुई, धीरे धीरे खाना कम हुआ, नींद कम हुई. She feel very tired. अब कहीं बाहर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, बाहर कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएंगे. हॉस्टल की जो लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट. अब उसको क्या लगता है कि मुझे आप वहीं छोड़ो, मुझे वहीं आना है, बट कैसे जा सकते हैं, जाने के लिए कोई मीन्स ही नहीं है, नो ट्रांसपोर्ट, तो जाएंगे कैसे. अब उसको ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे जाना है, स्पेशली जब सुबह सुबह उठते तो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी, घर में मतलब क्रेज शुरू हो जाता है कि आई हैव टू गो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, तो यहाँ रुकूंगी तो मैं करूँगी क्या. आप लोगों के चेहरे देख देख के थक गई मैं, आई एम बोर्ड हियर. सारा दिन वही चेहरे है, वही घर है. अब वो उसको समझाते हैं कि भाई साहब जाएंगे कहाँ, वहाँ भी तो कोई है नहीं.
उसको लगता है कि शायद मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ होंगे, वहाँ क्लासें भी चल रही होंगी, वहाँ उस तरीके का लाइफस्टाइल वहाँ शायद चल रहा है जहाँ मैं फंस गई। आई एम स्टक अप देयर। तो लेकिन ये बात उसके समझ में आती नहीं, वो समझाने की कोशिश करते हैं उसके पेरेंट्स के, देख भाई तू मतलब सब बाहर निकल के देख लो, कुछ है, कोई बाहर जाता जा रहा, कोई मूवमेंट है, कोई ट्रैफिक है, कोई गाड़ी, कोई प्लेन, कोई कुछ या कुछ तो है ही नहीं, नथिंग इज देयर। तो मानने के लिए तैयार थी। सुबह से ये क्लेश शुरू होता है तो टाइम पासेस एज द डे पासेस। दोपहर के बाद जाकर थोड़ा सा कहीं शांत होती है कि चलो ठीक है, शायद ये ठीक ही कह रहे होंगे, तो थोड़ा सा शी गेट रिलैक्स, राइट। रात को फिर वही बात, थोड़ी देर के लिए नींद आती है, अर्ली इन द मॉर्निंग शी गेट्स अप अगेन एंड सेम प्रॉब्लम देयर, शी फील बोर्ड, शी फील टायर्ड ऑफ इट, शी हैज अ पीकिश फीलिंग, नो एपिटाइट, हेडेक, बहुत भारीपन सिर में, कभी ये है कभी वो है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट कोई अभी पहले पहले तो कोई डॉक्टर भी खुले नहीं थे कि दवाई कैसे दें और कहाँ लेकर जाएं इसको। तो बाद में क्या हुआ, शी केम टू मी, ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। शी टोल्ड कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ आकर एक तरह से मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो कहते तो हैं कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे ये है वो है, बट मेरा कोई यहाँ फ्रेंड नहीं, ना कोई मेरे साथ किसी से बात कर सकती हूँ, ना कहीं बाहर जा सकती हूँ। मतलब यहाँ कभी थोड़ा सा बाहर निकली हूँ जैसे आज आपके पास आने के लिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ी घबराहट बेचैनी थोड़ी देर के लिए जरूर कम हो जाती है, राइट। बट ज़्यादा देर के लिए बाहर जा नहीं सकते, अकेले अकेले जाना मुश्किल है, अकेले बाहर कोई घूम नहीं सकता, दो जाने भी जा नहीं सकते। Overall, you know, everybody knows that all over the world the condition is the same. So it is lockdown everywhere. कुछ तो बाहर है ही नहीं है, एक्टिविटी कोई है ही नहीं है, और उसको एक्टिविटी चाहिए। हर एक पेशेंट का, हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का अपना अपना रिएक्शन है। अब ये बात उसकी समझ में कैसे आए, बल्कि वो उल्टा रोती है, चिल्लाती है, क्या मुझे कहाँ फंसा रखा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैंने कहा तुम्हें यहाँ तकलीफ क्या है, वो समझाते हैं कि तेरा घर तो यहाँ है, व्हाई यू वांट टू गो देयर। नहीं मेरा जी को नहीं अच्छा नहीं लगता जहाँ ये जो सब लोग जहाँ आप बड़े अजीब से बिहेव करते हो मेरे साथ, मम्मी को बात करती हो तो शी टॉक्स वेरी स्ट्रेंज, आपसे बात करती हो मेरे को तो लगता है कि आप ये मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज फीलिंग कि आप लोग कैसे यहाँ रह रहे हो, क्या करते हो, ये जो जगह ये मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, आप कैसे रहते हो, बल्कि आप भी अजीब से लगते हो, बड़ा मतलब आई डोंट नो हाउ, तो आप कैसे कहते हो कि आप मेरे मम्मी पापा हो या मेरी सिस्टर हो या ये हो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग शी डज हैव। तो वो मतलब यहाँ से निकलना उसके लिए मतलब उसको इतना जरूरी हो गया कि समझ में नहीं आ रही उसके बाद कि मैं यही मेरा घर है, यही मेरे सब लोग हैं, यहाँ मुझे रहना ही है। बहुत समझाना पड़ता है उसको, तो तब जाकर वो कहीं थोड़ा सा दैट टू आफ्टर द आफ्टरनून देन शी इज स्लाइटली बेटर, अदरवाइज सारा दिन चल रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर वो कहीं लेकर भी जाते हैं तो ज़्यादा दूर लेकर नहीं जा सकते, इतनी देर के लिए कहती है आई एम स्लाइटली बेटर, बट एज सुन एज आई रीच माई होम बैक फिर वही सब कुछ, मेरा तो मन ही नहीं लगता जहाँ पर, आई एम सो सैड, आई एम सो डिसरेक्टेड हियर, सारा दिन लेटी रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती, ना ही मन करता है बात करने को, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही कुछ करने के लिए है। दैट वाज ए वेरी स्मॉल केस, लेकिन कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब थी। सो दैट पर जो लोग बहुत है हॉस्टल की लाइफ, शायद जो लोग रहे होंगे दे माइट बी नोइंग के व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल they do have at the hostel, which is totally a different one from the home. यहाँ एक तो रिस्ट्रिक्शंस होती ही है फैमिली की तरफ से, बट अब तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो गई कि घर से निकल ही नहीं सकते, निकलेंगे भी तो जाएंगे कहाँ, जाना भी कहाँ है, देयर इज नो nobody outside,
कहाँ पार्क में नहीं जा सकते, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, कहीं खाने पीने में कुछ नहीं, नथिंग नथिंग एंड नथिंग। तो शी सेज, मुझे मुझे तो बड़ी ये अजीब सी हालत लगती है जहाँ इस शहर में, ये क्या। मैंने कहा वहाँ भी तो तुम्हारी हालत वही है, जहाँ भी तुम रहती हो, इट्स द सेम देयर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। नहीं, मेरा नहीं दिल लगता जहाँ पर, आई फील वेरी सैड। तो दैट वाज द केस। तो हमने इसको, वी ट्राई टू वर्क इट आउट। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब पहले पेशेंट को समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद मी, not all the way straight to the rubrics. Let us try to understand what kind of the feeling this patient does have. Nowadays, you know that there is a lockdown all over the world because of this pandemic, and all the persons are stuck up, other than a few, that is the doctors and some the defense personnel or the police personnel. They are on the road, otherwise you are not allowed to go anywhere. And neither anybody wants to take the risk of going out, because nobody knows when and where one will get the infection. But this lady has to go out. बाहर जाकर अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए चलो ले भी जाते हैं उसको बाहर, but she feels better, slightly better, but you can't stay out for a long period without any purpose. Unless it is really very, very urgent, only then you can go out, that too for a very short time, and you will have to come back because of the circumstances around. So this was the case. I think now you are able to understand the case, right? Wow. अब सबको आपको अनम्यूट किया हुआ, सुन रहा है आप? Anyway, let us try to सिद्धांत understand. सर, हेलो। जी डॉक्टर कुलकर्णी बताइए। यस सर, मुझे लगता है डिलीजन स्ट्रेंज, फैमिलियर थिंग सीम्स स्ट्रेंज, लाइक डिजायर फॉर, एंड डिलीजन सीज्ड एज इफ। क्या बच रहा है आपका? फॉस्फोरस आ रहा है? ये फॉस्फोरस क्या है उसमें? हाँ हाँ, मैं डाल रहा हूँ सर जो आपने रूब्रिक्स बोले, आई एम जस्ट पुटिंग देम सो दैट इट चार्ट सम। यस सर, यस यस सर, ओके सर। Delusion seized as if strange familiar things seem, and एक और क्या, लाइट डिजायर फॉर बोला आपने? हाँ, लाइक डिजायर फॉर। यही कह रहे हैं? Phosphorus. हाँ, यस सर। Yeah. Anyway, you have to go a bit further. It's not seized actually. Seized is something else where one cannot move either side. She's not able to. She's not able to communicate. She's not able to go outside. That means that's a delusion, as if she's seized. Why? Actually, we have to. That was my understanding. Yeah. Actually, what we have to understand is what she does and why she does and how she does. Actually, this is the expression, no doubt. And why she does like that? What is the basic feeling? Where the thing is gone wrong? Why she does like this? And she is. Sir, she has lost her freedom. Okay. Freedom to live. She wants freedom. Yeah, which she has lost. Okay, that's good. So, where should we put it? She wants to go. She has lost freedom. Yeah. That we can put it in like desire for. Like desire for, okay. In fact,
let us try to understand without wasting much time. No doubt, you people are somewhere very close to the basic feeling of the patient. Actually, when you analyze the case, you have to put much stress on what she does and how she does, and what she says and how she says is the most important. These are the two things which you have to keep in your mind always, because the mistake we repeat in each and every case is we are caught up somewhere with the expressions. Instead of going to the basic of the patient, we get stuck up somewhere in the expressions, right? So what she does, you have to explain why she does, right? She is no doubt stuck up. She is no doubt had no freedom, right? But what is actually the feeling behind it? She does feel like that what is there in the hostel? Why she want to go time and again to the hostel? The problem is only there that she wants to go there where she has freedom, where there are the friends, where there is some activity, right? And ये बात उसके समझ में नहीं आ रही कि वो तो सब जगह ही बंद हो गई है, दिल्ली में थोड़ी बंद हुई है. It's everywhere in the world. No activity. You are locked down everywhere. Right? So ये उसको क्या लगता है ये जो जिस जगह पर आकर फंस गई है वो कैसी लगती है उसको? है तो उसका घर ना, लग रहा है जेल है तो उसका घर. एक्चुअली शी इज एट होम बट शी डजंट फील लाइक. यहाँ तो सब लोग बड़े अजीब से हैं. उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो कंडीशन है, जो उसका चार दीवारी है, व्हाटएवर, उसको ये लगता है कि दिस इज वेरी स्ट्रेंज. कैसी जगह पर आप स्ट्रेंज फैमिलियर थिंग्स सीम्स स्ट्रेंज. ये नहीं आ सकते हैं, बट व्हेन यू हैव टू चूज द रूब्रिक देन यू हैव टू टेक द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेशेंट. एक स्टेटमेंट को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. एक स्टेटमेंट को बाद में करेंगे, पहले पेशेंट की जो बेसिक फीलिंग है, जो इनर फीलिंग है, उस पर हम लोग जाएंगे ताकि उसको पता चले कि वो एक्चुअली है क्या. व्हाट इज द इनर कोर ऑफ द पेशेंट? व्हाई शी इज सो मच डिस्टर्ब्ड एट दिस प्लेस? व्हाई नॉट एट द हॉस्टल? जबकि होना उल्टा चाहिए था. Getting my point? arrested feeling of being arrested या trapped feeling है. अब बताओ, अब पेशेंट तो नहीं बताएगा. Straight family from. एक चीज बड़ी अजीब सी बार बार जो कह रही थी वो, that was a strange feeling थी उसको कि कैसे हैं आप लोग, मतलब कैसी जगह पर रहते हो, ये कैसा माहौल है यहाँ पर. What kind of this चार दीवारी is like, right? I want to go back. मतलब उसको वहां जाना बहुत जरूरी है ना? वो किस लिए? क्योंकि वहाँ सब कुछ है, ये एक्टिविटी है, उसको लगता है कि वहाँ लोग हैं वहाँ पर शायद, जबकि उसको पता है कि वहाँ अब कोई नहीं है, बट शी फील्स लाइक, है ना? उसको क्या लगता है? फर्स्ट फीलिंग इज the first rubric we are going to take is delusion home. सिद्धांत निकालेंगे हम लोग. जी जी. She's delusion home, away from the home. पीपी पर आ जाइए और पावर पॉइंट पर ले आओ पावर पॉइंट ले. Can everyone see this? दिख रहा है? Yeah. She feels like that. No doubt she is at home, but she feels like that she's away from the home. मुझे वहीं जाना है ना?
because you have to understand the next rubric, why she is so much behind this statement that I have to go back to the hostel, I have to go back to the hostel. She is delirious and wants to go home, right? What's home? First, we have to understand what is home. What do you understand by home? Home is a place where you feel relaxed, where you feel comfortable, where you get the freedom, right? Where you have the full freedom to express yourself. You can communicate to anybody. You have the full right to do anything the way you want, right? But here, what happened? She got restricted. She got sad. She has no communication, right? It's not, no doubt she is in the home, but the feeling of the home is missing. So where she wants to go? She wants to go home, right? Where is that? According to the patient, that is in the hostel, right? But these are the delusions, actually not the reality, right? She feels like this. If you go to the next rubric, next is delusion. Home, away from home, he is and must get there. उसको लगता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए. वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो अगर हम लोग ये रूब्रिक को भी मिलाते हैं तो you will get only the one remedy, and that is Bryonia. Bryonia, है ना? So the next rubric is very important, which was the, you can say, the central point of this case is the strange land as if she is in. उसको बड़ा अजीब लगता है कि ये कहाँ आ गई मैं, ये कैसे लोग हैं आप लोग, कैसे रहते हो आप यहाँ, बड़ा अजीब सी जगह है ये, है ना? इट इज़ वेरी स्ट्रेंज. है तो जरूर उसका फेमिलियर तो जरूर है, राइट? लेकिन वो रूब्रिक यहाँ फिट नहीं होता. उसको लगता है कि ये बड़ी अजीब सी जगह है यार, आप लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर. उसको हर बंदा अपने, नॉट ओनली द सराउंडिंग बट इवन द, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसकी सिस्टर हैं, जो उसके आस, जो भी उनके घर के लोग हैं, वो भी उनको बड़े स्ट्रेंज लगते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, कैसी जगह पर रहते हैं, अजीब हाल है, ये तो बड़ी अजीब सी जगह पर फंसे हुए हैं. एंड शी वांट्स टू go, just wants to leave this place and wants to go back to the hostel where she feels that that is a much relaxing space, that is a much relaxing place. So I have to be there, I want to go there, but it is just not possible, right? And she feels homesick. She is homesick, right? Firstly, ये फंस गई वाला, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वो उसने नहीं कहा कि मैं फंस गई यहाँ. उसका तो यही है कि ये मतलब घर कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज, राइट? तो होम सिकनेस उसको जिसको कहते हैं, तो ये उसको एंजाइटी हो रही है उसकी वजह से कि यार मैं निकलूंगी कैसे यहाँ से, जाना कैसे है, मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, राइट? शी हैज द एंजाइटी इन हाउस. Right? Now you have to understand the meaning of house. What is house? Right? Where all these things of the home are missing. That is the comfort, that is sort of other members of the family, a warmth. All these things are missing, right? So it's like a house. It is just a building only, but no emotional warmth is there, no emotional, you can say emotional, and otherwise it is not at all a comfortable place for her. Getting my point? Right? So that causes the anxiety, that, and when she goes out, right? When she goes out for a while, she gets a bit relaxed. Right? And when the parents of this young lady try to make her understand that this is your house and
It is just because of the circumstances prevailing at the moment, and it's not our fault. What we can do, we can leave you at your place, but there is no communication. There are no means of transport. How we can help you out? Then for a moment, for some times, only for a while, she get relaxed. Oh yes, she try to understand. नहीं यार ये भी ठीक ही कहते हैं, but when time passes away, again वही हालत फिर से, right? And that was the rubric which is called, next rubric, open air confusion of mind, yawning ameliorates. What's the confusion here? She is unable to differentiate where actually her home is, this place or the hostel, right? She is confused. She is comfortable at the hostel, right? But they people are trying to make her understand, this is your house. You should be comfortable here. You are among your family. You are among your sibling. So why you are so much behind going to the hostel? Right? So she is confused. But when they try to understand, for a while, when she gives some space to them, try to understand their feeling, what kind of consolation they are giving, that makes her a bit relaxed. That is called yawning. Give a space like this, right? Give space to her feeling. That is the yawning ameliorates confusion of mind. Only then she can understand for a while, oh, they are telling the fact, that they are telling the reality, that this is my house. But after some time, same thing happens again. And next rubric is illusion stranger friends, peers as strangers. उसको क्या लगता है, उसके जो रिश्तेदार जो है, उससे जो अपने घर के लोग ही, वही उसको स्ट्रेंजर लग रहे हैं, राइट? जो उनके बिल्कुल आसपास के लोग हैं, जो उसको इतने सालों से उसके साथ रह रहे हैं, they appears herself to be strangers. Only 3 medicines are there: Brinia, Neon, and Stramonium. It's the Stramonium who gets anxiety among the strangers. Yeah? Strangers के दौरान पास में बहुत anxiety होती है Stramonium को. And next rubric is, that's why she wants to go home. He has a desire कि मुझे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ ले चलिए, right? Home, desire to go. जहाँ पर जाकर वो थोड़ी relax हो जाए, थोड़ी comfortable हो जाए, थोड़ा अपने तरीके से रह पाए, right? और वो लोग क्या करते हैं, वो कहाँ से अब ये उसको ला कर दें, एक तरह को वहाँ छोड़ दें, क्योंकि कम्युनिकेशन तो है ही कोई नहीं, नो ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग कहाँ से ला कर दें? तो शी गेट्स वेरी एंग्री, क्योंकि उसकी डिमांड ही ऐसी चीज के लिए जो दी नहीं जा सकती उसको, और दैट इज द मोस्ट वांटेड, और वो दी कहाँ से जाए, राइट? एंड दैट मेक्स हर एंग्री. Anger refused when anything he wants or. And next, and the only way to ameliorate that anxiety is to take her out for a while, and she feels good. ब्राइनिया को बाहर जाने से काफ़ी अच्छा आराम मिलता है, ओपन एयर. यहाँ आपको लगता है ना कि रेस्पिरेशन इम्पीड हो रही है, एक्चुअली नो डाउट सफोकेशन उसको फीलिंग होती है, थोड़ी बहुत सफोकेशन की. शी फील्स सफोकेशन, नो डाउट, ब्राइनिया. बट व्हेन शी गोज आउट, वो जो एंजाइटी अंदर से जो एक उसको परेशानी, जो अनकंफर्ट हो रहा है, जो अनईज हो रहा है उसको चार दीवारी में, उसको बाहर जाने से दैट इज रिलैक्स्ड. दैट एंजाइटी एयर इन ओपन अमेलियोरेट्स. और सारा दिन अदरवाइज वो क्या करती है, और उनसे इंटरेक्ट करना बंद कर दिया, ना रोटी खानी है, ना पानी पीना है, ना कोई उसकी डिमांड है. एंड शी कीप्स ऑन लाइंग एंड डाइंग एंड शी आस्क्स फॉर नथिंग, आस्किंग फॉर नथिंग, राइट? Company aversion to strangers,
aversion to the presence of, ठीक है, उसको strangers तो नहीं है actually, उसकी family ही तो है, but she is averse to them. She doesn't want to talk to them. She just doesn't like everyone. कि क्या कैसे लोग हैं आप लोग, है ना? They appears to her as if they are the strangers, है ना? जैसे कभी मिले ही नहीं है, जैसे कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है एक दूसरे के साथ में। और सबसे बड़ी समस्या उसकी ये है कि ये क्लेश सुबह ही उठते ही शुरू हो जाता है, और वो सुबह जल्दी उठते हैं, एंड जैसे ही उठे और सूरज उदय हुआ तो उनके घर में क्लेश, एंड शी गेट्स रिलीजियस, आई वांट्स टू गो बैक, है ना, आई हैव टू गो बैक टू द हॉस्टल, आई डोंट वांट टू स्टे हियर एनी मोर, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, छोड़ कर आओ, है ना। ओनली 2 मेडिसिन्स आर देयर, delirium morning at sunrise, Brainia and Conaim. Brainia is very strongly praised. और ये बात तो उसके समझ में आती ही नहीं है, सुबह सुबह जो क्लेश करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये मतलब मुझे यहाँ रहना नहीं है, ये इतनी अजीब जगह, ये कैसे कैसे जगह पर आप रह रहे हो, है ना, कैसे लोग हैं आप, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आती कैसे रहते हो आप ये 4 दीवारी में। आमतौर पर शब्द जो यूज किया जाता है जब घर घर ना लगे तो व्हाट इज दैट कार्ड इज 4 दीवारी। तो शी इज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब उसको लगता है, पता ही नहीं चलता कि ये मेरा घर है। स्पेशली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम इज द वर्स्ट फॉर Brainia, स्पेशली ऑन सनराइज, right? And what happens as soon as the sun rises in the morning, what happens? She gets delirious and the warm room aggravates. What's the warm here? उसके पेरेंट्स जो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको जो एक प्यार से कहने की कोशिश करते हैं, एक वार्म देने की कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, आप समझते क्यों नहीं, ये आपका ही घर है, ये वो है, और नहीं मुझे नहीं चाहिए आपकी, वो समझना उसको चाहिए ही नहीं, राइट। एंड वार्म रूम में एग्रेवेट सिर्फ ब्राइनिया ही होता है, डिलीरियस सिर्फ warmth room में is only Brainia gets delirious. That's why as soon as she gets delirious, and what's the next step? I want to go home. Home desire to go deliriously, right? मुझे घर जाना है, मुझे घर चाहिए, right? वो समझाते हैं उसको और समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो मांग किस चीज की कर रही है इस टाइम, पेरेंट्स कहाँ से लेकर जाए उसको घर, it is very difficult for them, right? It is something which is unattainable, desire for something unattainable. So she is behind this desire which is unattainable. I want to have this. Brainia ऐसी चीजों की डिमांड करेगा आमतौर पर जो कि उसको दी ही नहीं जा सकती, जो कि पाई ही नहीं जा सकती, जिसको बहुत मुश्किल है। Getting my point? So this is what this young lady was doing, and she was given Brainia in LM potency, that was given LM2, and she recovered wonderfully just in 2 days time. It was repeated every 3-4 hours. All this delirium and the delusion and the feeling of this uncomfort just went off just in 2 days. And when I met her 3rd day, she's much comfortable. And last Tuesday I met her. I opened my clinic 2 days, that is Tuesday and Friday only. So last Tuesday I met her and she's much comfortable. Only few things, that is only the physical sickness, that is pukish feeling in the morning, only there. Otherwise mentally she is almost all right and out of the blues. Now she can understand where actually her home is. Now she is comfortable with his family and they are enjoying the lockdown now. Getting my point? Right. If everyone has some question or some contradiction, we can discuss it in the end, sir. है ना? तो कोई करता है, okay, doubt okay, आता है। all right. So we shall discuss this case at the end of this meeting, and now I will Thank you so much, sir. ask Dr. Sanjay to continue further, and if some problems are there, I am very much here. We can talk later on, right?
So this was a small case of depression, and she is out of the blues, and now lockdown is very pleasurable to her. Thank you. जी ठीक है सर? जी, थैंक यू सो मच सर. एंड आई होप आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे डिफरेंसेस डॉक्टर, दिस वाज द ब्यूटी ऑफ डॉक्टर एम एल सहगल, कि उन्होंने कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को भी डिफरेंशिएट करके दिखाया. जैसे हाउस और होम, एक छोटा सा मैं आपको क्लिप एक दिखाता हूँ. अगर आप देखोगे, ये मुझे कहीं स्क्रीनशॉट मिला था. स्टेप इनसाइड तापसी पानू's हाउस इन मुंबई, एक्टर रिकॉल्स हाउ शी मेड इट होम. तो हाउस तो उसने पहले ही खरीदा हुआ था, बट होम पहले नहीं बना था, वो होम उसने बाद में बनाया उसको. So that is a very small difference between house and home. होम लोगों से, आपने जैसे सर ने बताया, उस एटमॉस्फेयर से, उस वार्मथ से बनता है, जो वो मिस कर रही थी वहां पे. Now I would call Dr. Sanjay. Please, sir. Thank you, Dr. Siddhant and Prem, Dr. Prem. मैं कुछ just finding a bit troublesome and strenuous for Kulkarni and Kulkarni. Can you put them on, please, for a minute? They were very close in a field with impeded respiration, but because this predominance has to be seen. And maybe we are not aware of other lanes which other drugs have. Dr. Kulkarni, can you put him on? Mm-hmm. डॉक्टर कुलकर्णी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. यस सर, यस सर. जी. हाँ, आपके माथे पे शिकन और पशमानी पे मैंने थोड़ी खिंचाव देखा. कितना कंफ्यूजन है. समझने में. How much? Hello, Dr. Kulkarni. Right. yes sir, yes. It was well tried. He tried very good. But क्या लगा, क्या मिस हुआ, और कितने कन्विंस्ड हैं? मुसीबत तो लग रही है चेहरे पे. इस चेहरे को देखें भाई सब. Have a look at this face. बस आपको समझ आ जाएगी. I'm not pointing to anyone. It is not my objective. How to learn? And we all are objects. बड़ी अजीब सी पशमानी पे शिकन है, हैरानी है, आंखें खुल नहीं रही हैं. डॉक्टर प्रेम ने भी बताया, वो डिलीरियस स्टेट में चला जाता है. सनशाइन. आपको तो बताया गया. तो यू लर्न ऑल योर वे इन लाइफ. डॉक्टर चौहान जितने भी थे क्लासिकली, द aggravation after sleep and rising morning, we have most known lachesis like drugs. But this confusion and dullness and rather delirious and confusion combination is a besotted look on the face of Briannia you'll get. Why I chose? Because we just decided. I heard from people that, sir, during lockdown, we just restarted revisiting our books. Somebody is reading Organon, somebody is reading some other books. And Dr. Dilip Jani told me, sir, I'm reading sir's first volume and a second volume. So we thought, let's take you to the second volume. The master has given us these inroads into this. अभी क्या फीलिंग है? Jeetu, do you really
I'll be taking a session in such a way that you feel that there are certain laws being given to us, that we have to see the present persisting predominance, right? And Siddhant, Dr. Siddhant will help me to really ask you those. Now you know the remedy. And Brahmya is a very, very common remedy. Dr. Kulkarni is a very, very common remedy. And there is a strange thing. Dr. Prem has given you 2 rubrics now. Desires full of. What was that? Siddhant, can you open that rubric? इतनी इच्छाएं हैं, फिर मांगता क्यों नहीं है? Desires, full of desires, unattainable things desire for. Right? Hello. जी जी जी, वही पूछ रहा हूँ. डिजायर्स तो बहुत है, फुल ऑफ, राइट? Is it really unattainable? राइट. और कोई कारण दिखता है? Any other reason you can think of? I've combined those 2 rubrics जो आपने कहा, asking for nothing and desires full of. We are left with brainia, opium. 4 दवाइयां आती हैं, ओपियम है, र्यूम है, पल्साटिला है. आप एक तरफ चलिए, thought persistent, डालिए सिद्धांत इसको. So we'll be just taking up a journey for you, right? Thought persistent. Desires of, उसकी इच्छाएं हैं, उनकी लगातार उसके पास इच्छा बनी हुई है. Thought persistent, desires of, जो इसकी इच्छाएं हैं. कभी सोचा इस रूब्रिक को? इग्नेशिया भी पढ़ी है. लगातार ये विचार उसके मन में आ रहे हैं. Persistent desires, जो इसकी इच्छाएं. कब हो रहा है ये ज्यादा उसके साथ? थॉट persistent थे, अब क्या हुआ? थॉट्स रश फ्लो ऑफ. इवनिंग बेड इन और इवनिंग बेड इन. जो बिस्तर में जाता है, दोनों. हेलो, am I going very deep for you people? Yes. आपको लग रहा है ज्यादा गहरा जा रहा हूँ? कुलकर्णी, वापस निकलना चाहिए समुद्र से. नहीं, हमारे लिए इट्स ओके सर. फॉर न्यू पीपल, अभी जो ज्वाइन किए उनके लिए थोड़ा सा हार्ड जाएगा. क्यों हार्ड होगा बेटा? सिंपल सी बात है. विचार और इच्छाएं, दो ही तो चीज आपको तंग करती हैं. हेलो, और आगे चलें. यस सर. ये तो आपने ब्राइनिया तो सब जानते हैं. आप तो महारथ ही इतने पुराने हो गए. अब आपको कुछ नया सामान नहीं मिलेगा तो लगेगा क्या सर ने क्लास कैसे की. और ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने डॉक्टर सहगल की बुक उठाई है, इसका जस्ट आपको पकड़ा रहा हूँ. इसका मतलब हमें कितना पढ़ना होगा? We have to read that master's work, that how he has coined those beautifully embedded, he's making a ring for you and he's embedded pearls, diamonds, jewels are there to pick up. आगे चलने से दान डालिए. Thoughts, sleeplessness, अब विचार आ रहे हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही. तब विचार ही. What is her problem? हेलो, कुलकर्णी क्या डिस्टर्ब कर रहा था? ये घर का ना होता हुआ माहौल और ये विचार, यार क्या है, कैसा है, सब. What are these? They are thoughts. हेलो,
हाँ वहां कोई दर्द था, कोई पेन था? वहां तो विचार थे। हेलो, आप मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। जी जी तुलपुले को भी खोल लो, एक आध को और मुझ को निकाल लो बीच में से, Yes, sir. और किसी न्यू कमर को निकालो। Yes, sir. जी। न्यू कमर कौन है? थोड़ा सा जो पहली बार सुन रहे हैं या फर्स्ट टाइम है? अमित जानी को खोल लो। अमित अमित किताब पढ़ रहा था, कोई बात नहीं। ये संध्या है, सॉरी। ये संध्या है, फर्स्ट टाइम है शायद। तो जी बेटा। लिसनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes, sir. Thank जी और इसको कहाँ डालोगे कुलकर्णी? अब इसके साथ मिलाओ इसे। एक चीजें तंग कर रही हैं, विचार हैं, ये मैं तंग हूं, तो वर्ड सिंपल क्यों नहीं डाला तुलपुले हमने? डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड। तंग हो रही है ना? यस सर। बड़ा सिंपल था हमारे पास। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो तंग कर रहा है, और क्या विचारों का सिलसिला है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग हर थॉट्स। द फीलिंग इज आई एम अमंग इन नॉट माइन हाउस। वो हाउस में फंस गई है, होम नहीं है। और क्यों हो गया? आपको अब डॉक्टर प्रेम शायद पूछ सकते थे इस सवाल को, हाउ लॉन्ग यू बीन इन हॉस्टल, हाउ लॉन्ग यू बीन अवे फ्रॉम दिस हाउस ऑफ योर पेरेंट्स? तभी कहते हैं वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू माय मदर्स हाउस। दैट इज देयर होम बट नॉट हर होम। Maybe the hostel has become her home. Dr. Tulpule, can you understand? If I'm away Yeah. for 10 years in America and I even come back to my village, मुझे अभी भी लगेगा मिसिंग यार, वहां जो कंफर्ट्स थी। यू अंडरस्टैंड? वहां जो था वो मेरा घर था, जहाँ मेरे कुलीग्स थे, जहाँ मेरी चपली जहाँ उतार दी। अब यहाँ भी यार एक हाउस है, राइट? हाउस। सो व्हाट इज डिफरेंट? बोथ हैव अ बिल्डिंग, बोथ हैव अ प्लेस, but here there is a warmth, there is some feeling attached. In German language, from where the words have come, some of them, dekhe Kankan house. That means a sick home. Hospital is called Kankan house. Kankan house है। अस्पताल को घर कहता है कोई? हेलो, how many people will call hospital? आज पूछिए ना, लोग भाग रहे हैं अस्पताल, मत ले जाना पकड़ के, वो तो बिठा लेंगे, पकड़े जाएंगे मजा। इससे अच्छा कहाँ कर लेंगे? एट होम। एट होम विल बी, आप जो हमारे को पनिशमेंट लगाएंगे 20 दिन की, 50 दिन की, हम घर में रह लेंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ टू द न्यू कमर्स व्हाट इज अ होम एंड व्हाट इज अ हाउस? हाउस इज मेड ऑफ द bricks, stones, a building which may not have all that what I need, the warmth, the feeling. So that is a subtle difference. Or what troubling her? Delusion is being injured by these thoughts कि ये घर नहीं है यार, ये जगह ठीक नहीं। अगर आप वही डालिए delusion strange land या इसे feeling and is being injured, उससे वो तंग हो रही है। चौहान साहब को खोलिए। वो चले गए शायद, बीच में कहीं पे आए थे या चले गए। I don't know if she is there. जीतू को वापस एडमिट किया हूं उनको। जीतू को खोल लो। उनको लॉग आउट हो गया। और कोई जीत अपने ग्रुप में से कौन है थाने से तो तुम्हारे साथ थे, उनको लिया गया है? डॉक्टर सर डॉक्टर विजय गुप्ता है, डॉक्टर विजय गुप्ता है, दीपाली। और एक डॉक्टर गौरी देश पांडे हैं, उन्होंने चैट में पहले लिखा था एंड वो काफी जल्दी पहुंच गई थी कि घर में घर वालों के साथ हैं पर फिर भी घर जैसा नहीं लग रहा है उसको। where she should have been in comfort, rather she wants to get away from there as if hostel is her home. इन्होंने लिखा था चैट में, डॉक्टर गौरी देश पांडे। Very good, Gauri. That's wonderful that you are understanding. It's not that we have to label. हम समझ रहे हैं ना कि this is we are understanding, और माँ के घर में है तो इसका घर है, उससे तो पूछिए उसका घर कौन है। So that is how you have to, Dr. Sehgal का कहना था, when you take up a case, you ask the person concerned, not conclude and make a decision on your own.
that this, वो घर तो घर ही है ना सर उसका। तुलपुले साहब, डॉक्टर तुलपुले, क्लियर है मेरी बात? आपने डॉक्टर सहगल कहते हैं विजिट द पेशेंट, आस्क हर टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस। यार ये घर क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा क्या मिसिंग हो रहा है, राइट? तो आपको वो समझाएगी सर यहाँ क्या है ना, वो लोग हैं, इनकी थिंकिंग अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, अब मुझे इनके हिसाब से ढलना होगा। तो ये सब चीजें उसको तंग करेंगी। आप समझ रहे हैं? दोनों जगह की वार्मथ अलग अलग है सर, है ना? तो आप सोचिए, हमें डॉक्टर सहगल बहुत सुंदर सा रास्ता दे गए थे। एक फीलिंग है इसके अंदर, जब इस बुक को आप खोलना शुरू करेंगे, इसके पहले 2 पन्ने भी पकड़ेंगे और डॉक्टर सहगल डिस्टर्ब, अब ये क्या कर, अब ये सारे डिस्टर्ब कहाँ गया? डॉक्टर कुलकर्णी साथ रखिएगा। क्यों नहीं मांगता, मुझे सवाल ये, एक आदमी के पास इच्छा इतनी है, पल्सर के पास भी इतनी इच्छा है, फिर भी वो मांगते नहीं, क्यों भाई? आस्क फॉर नथिंग। वो बताए क्या आपको? सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसके पास है व्हाट टू टेल यू, क्योंकि अटेनेबल है ही नहीं। एक स्थिति आएगी, 2 स्टेट में जाएगा, बड़ी सुंदरता है इसमें। एक तरफ वो वाइल्ड है और एक तरफ क्वाइट है, और दोनों डिलीरियस स्टेट में। डिलीरियम क्वाइट, चुप हो जाता है, चुप हो जाता है। अब चुप होके नहीं मांगता, इसलिए आस्क फॉर नथिंग डालिए, डिलीरियम क्वाइट एंड आस्क फॉर नथिंग। आस्किंग फॉर, अब प्लसा जरा बाहर हो गई, ओपियम हाइसाइमस ब्राइनिया आ गई। और डिलीरियम भी अजीब है, एक तरफ क्वाइट है, दूसरी तरफ इतना रेजियस है। उसको जब क्वेश्चन पूछते हैं, बात करते हैं, है ना, अभी रूब्रिक क्या था, एंग्री डॉक्टर, एंग्री में आंसर ऑब्लाइज्ड। अब उसको जवाब पूछते हो तो उसे आ जाता है, क्योंकि चुप है भाई, तू मांग नहीं रही खाने, क्या करोगे? जो चुप है, डिलीरियम क्वाइट है, आज कुछ मांग नहीं रही है, क्या कहोगे? यार सुबह से पड़ी कुछ ले ही नहीं रही, चलो बाहर ही आके बैठ जा। डालिए, सिद्धांत डाला नहीं, आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, एंगर है आपके सामने, एकदम निकल के चली आई सर। हेलो, चुप ही था मैं, डिलीरियम चुप क्या है, वो चुप हो गया है, परेशान तो है, दुखी तो है, ये नहीं कि मुंह चुप कर लिया, बंद बंद हो चुप। और चुप का मीनिंग क्या है? अब डिफरेंस क्या होगा क्वाइट और साइलेंस में? आपकी अगला झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्वाइट क्या है? आप और मैं बैठे हैं यार, चलो पीछे कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, तो अभी ये साइलेंस नहीं हुआ है। क्वाइट में क्या, नॉइसेस कुछ कम हो गई हैं, तंग नहीं कर रही हैं, पर ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाइट। या जरा चुपचाप निकल जाना यहाँ से, आवाज मत करना, चुपचाप। साइलेंस जरा डीप है, वहां कोई भी आवाज नहीं है। क्वाइट में आप क्या कहते हो? दबे पाऊं, जरा चुपचाप निकल जाओ, माता जी को पता ना चले, जाग जाए। इसका एक्शन हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, फिर उसकी पेस, उसकी आवाज इतनी धीमी है कि आपको तंग ना करे, ऐसा ऐसे चाहा जा रहा है। अब वो अंदर चुप है, इसलिए वो साइलेंट नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है, सो नहीं रहा है, अभी भी नींद नहीं है, स्लीपीनेस है, पर सोया नहीं है, स्लीपलेसनेस हो जाएगी, अगला रूब्रिक बन जाएगा, स्लीप है, दोनों तरफ पड़ा है। एक तरफ डिलीरियम है, स्लीपीनेस विथ, अंदर नींद आ रही है, पर क्या है, विचारों ने घेर रखा है। डिफरेंस क्या हो रहा है कि आंसर करने पे गुस्सा नहीं हो रहे हैं ओपीएम और हाइसाइमस। ये क्यों होता है? अब आ जाइए बेसिक रूब्रिक जो डॉक्टर सहगल ने इस किताब को लिखते हुए दिया था, क्या था? डिस्टर्ब अवर्स टू बी।
वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो जब आके उसको ये बातें समझाने की कोशिश करते हो कि भाई इसको भी तो घर समझ ले। मेक द हाउस होम, बट शी कैन नॉट। इज इट क्लियर? What is the effort from the family is requesting her to make the house home. उसको लगा आप क्या समझोगे, मैं क्या बताऊं जो आपको मैं समझा ही नहीं सकती कि क्या मैं मिस कर रही हूं। तो क्या मांगोगे जब आप समझा ही नहीं सकोगे कि मांगना क्या है, तो क्या मांगोगे तुम? आपके पास मांगने को, आपके पास चुप्पी के सिवा कोई कारण नहीं होगा, आपको लगा और डिस्टर्ब होंगे। डॉक्टर सेगल ने बड़ा ब्यूटीफुल लिखा है, व्हाट इज डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग अ ब्रेन which has already been disturbed wants to retain, वो वापस लौटना चाहता है शांति की ओर, और या somebody who is already in a quiet state doesn't want to be disturbed। दोनों शेप में लगाया डॉक्टर सेगल ने, कॉइन की दोनों साइड दी है। वो विचार, वो चीजें मुझे तंग कर रही हैं, ये हटे तो मैं चुप, है ना, तो डिस्टर्बेंस हट जाएगी। डिस्टर्ब अवर्स, ये डिस्टर्ब कर रही हैं, आई वांट देम टू गो अवे so that I can be quiet। And if I am already attain a level of quietude, तो मुझे आगे आके डिस्टर्ब मत करो, मुझसे पूछो मत। आप समझ रहे हैं? Thinking of complaints aggravate। विचार उसे तंग करेंगे। इस सब मैंने डॉक्टर सेगल के इस बुक से था, सिर्फ इस एक पेज पे गया हूं तो मेरी जान निकल गई डॉक्टर तुलपुले। अभी मैं 64 नंबर पेज पे हूं, जिसमें सिर्फ मैं विचारों के साथ घूमा हूं। I have only thoughts। अब मैंने आपको क्या दिया है? थॉट्स थॉट्स थॉट्स, राइट? थॉट्स भी प्रोसेस है। माइंड जरूरी नहीं है कि वो विल, अंडरस्टैंडिंग एंड देन मेमोरी, थिंकिंग एंड थॉट का प्रोसेस सेकंड लेवल पे आती है ये बात। आपको याद है डॉक्टर सेगल ने क्या कहा था? हायरार्की क्या चलिए डॉक्टर केंट से? विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। और डिसईज क्या है यहाँ? कि विचार तंग कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। इसीलिए अब इसमें डाल दीजिए, सारे बॉक्स में डाल दीजिए डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड, तो ओपीएम हाइसैमस वैसे ही बाहर हो जाएंगी। वो इंजर्ड की शेप में जाती नहीं, वो जरा ज्यादा ट्रंकुल लेवल पे है, ब्राइनिया ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, आप लोगों को लग रहा है मुझे चलना चाहिए, रात का समय है, मैं आपसे ज्यादा बूढ़ा हूँ, आई एम मच ओल्डर एंड मच टायर्ड, बट आई फील आई एम स्टेइंग वेरी स्ट्रेट एंड टॉकिंग टू यू। अब आप देखिए, have we ever entered through this? इसकी डिलीरियस स्टेट है। अब जो ऐसा डिलीरियस में सो नहीं पाएगा, विचार तंग करेंगे, सुबह क्या हालत होगी? जो उन्होंने कहा डिलीरियम, वो तब भी एक डिलीरियस स्टेट थी जब मॉर्निंग में सनराइज पे आए। उसको डिल्यूजन, डिलीरियम और एक कंफ्यूजन तंग करेंगे। ये एक गोल्डन रूब्रिक को लीड करेगा, बड़ा सिंपल सा रूब्रिक है। That rubric is capriciousness, want something but does not what। आपको कैमेमुला पता है, आपको पल्साटेला पता है, ये ब्राइनिया की कैप्रिशियसनेस होगी जो इस डिलीरियस स्टेट से अराउज हो। वो क्या मांगे आपसे? कैप्रिशियस है ना, इसलिए आस्क फॉर नथिंग में पड़ गया। अब डाली कैप्रिशियसनेस, और आप, है ना, आगे लिखा है, देखिए देखिए, और आप चीजें ऑफर भी कर रहे हैं। हो सकता है उसकी प्यारी चीजें मां के, देखना ये तेरा पुराना देख वायलिन है, यही उठा ले, तेरी बढ़िया सी साड़ी है, यही पहन ले, तेरे मन का खाना बना देती हूँ, यही ले ले। और डॉक्टर प्रेम ने रूब्रिक दिया था, एंगर क्यों आ रहा था? कि जो वो चाह रही है वो नहीं मिल रहा है। आप याद रखिएगा, यही स्टेट, दिस इज द ओनली स्टेट कैमेमुला हैज। Why he is crying and hitting people? Because mother wants, माँ की समझ नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है। The capricious child wants something but cannot tell you what he wants। उस बच्चे के सामने अगर वो खेल रहा है, उसको लग रहा है ये बॉटल बंद करनी है, उसका मन कर रहा है ये, right? He wants to close this cork,
द कैप और हो नहीं पा रही, तो वो चिल्लाता है, चीखता है, मारता है, क्योंकि अड़चन पड़ रही है ये कानून की स्थिति। और माँ क्या कहती है, अच्छा ना बेटा मैं कर देती हूँ, तो उसे गुस्सा आता, पीछे हट, डोंट कैरी मी, बिकॉज मेरे को तेरे से ढक्कन नहीं बंद करवाना, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी समस्या ये है। चाइल्ड के मन में क्या है, मैं बंद करूंगा, माँ मदद करती है, जिसे इसको क्या कहोगे, अवर्स टू बीइंग कैरिड। यहाँ सारी उम्र हमें पढ़ाया गया कैमोमिला वांट्स टू बी कैरिड, अब यहीं जाइए ब्रायनिया में जाइए, अब कैरिड बीइंग अवर्स टू बीइंग कैरिड। When you go to the rubric averse to being carried, बहुत लगाया आपने कैरी डिजायर, कितनी बार लगाया वर्जन टू बीइंग कैरिड, और ब्रायनिया चमक रही है एलन से आई हुई, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैमोमिला से। माँ क्या कर रही है, ट्राई टू कैरी हियर आउट ऑफ द ट्रबल, उस मैम जो विचारों का खोखला उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है उसे। आप लोग मेरे साथ हैं नए वाले, नीचे एक पिक्चर दिख रही है, रमेश क्या लिखा है? Yes, sir. आपको समझ आ रही है बेटा मेरी बात? Yes, sir. खाली हानि करनी पड़े, समझ से समझना है, राइट? जनरली वी बीन टोल्ड चिल्ड्रन वांट टू बी कैरिड, राइट? चाहते हैं, यहाँ क्या चाह रहा बच्चा, कह रहा मत उठाओ, छोड़ दो, हम इसको ले जाते थे, है ना, बड़ा डिसोबीडिएंट है, बड़ा रफ है, अगली है, सब आएंगे, डर्टी है, स्नैपिश है, यू कैन यूज मेनी वर्ड्स, बट व्हाट ही वांट्स, जिस स्थिति में है उसमें से बाहर निकालने की कोशिश मुझे मत करो, छोड़ दो, डिस्टर्ब मी नॉट, है ना। अब इसीलिए वो कह रहा है डिस्टर्ब अवर्स टू बी, अब इसको मिलाइए, कैरिड अवर्जन क्या है और डिजायर क्या है, दोनों रूब्रिक्स अलग कर दो। सिद्धांत, डॉक्टर सिद्धांत प्लीज, दोनों अवर्जन क्या, अवर्जन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन डिजायर्स, प्लीज, डू यू नो दिस? इन द हायरार्की ऑफ, है ना, जब हम हायरार्की में जाते हैं, एवेल्युएशन ऑफ केस, सो व्हाट गेट्स मोर पॉइंट, जो इसमें अवर्जन है, डिजायर्स एंड अवर्जन में से, ये एग्रेवेशन जो चीज करती है, व्हिच एग्रेवेट्स द पेशेंट मोर, इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट एम्बलोराइज द पेशेंट। जीतू आप मेरे साथ हैं? डॉक्टर जीतू, खोल लो जीतू को भी, और दो रूब्रिक डालो, कैरिड अवर्स टू बीइंग एंड डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग, इसमें क्या बचा है? दोनों स्ट्रॉन्ग अवर्जन डाल दीजिए प्लीज। सिद्धांत, आई एम नॉट गेटिंग यू। अब एक disturb averse to be and carried averse to be. अभी ये न्यू एडिशन है, क्योंकि शुरू में when Dr. Sehgal wrote this book, there were only 4 medicines in the rubric disturb averse to being if we go by Kent, and then you won't be getting even chamomilla there. It will be only drug left there, disturb averse and carry the averse. पर उसमें नहीं है, चलिए आप इसको वैसे ले लीजिए, यही रुकते हैं हम। और ये क्या करेगा, when you try to carry and when you try to disturb, it will cause a feeling of being injured. ये तंग कर रहे हो यार आप लोग, कॉन्स्टेंटली परेशान कर रखा मेरी माँ ने जानकारी। अब इसमें डालिए डिस्टर्ब, है ना, delusion is being injured. तीन बेसिक delusions हैं which trouble Brahmia according to Dr. Sehgal. जानी को खोलो, जानी पढ़ रहा था, डॉक्टर जानी है नहीं है, जीतू जानी को खोलो, यानी ओपन है। यस सर। हाँ है, यस हाँ, दिलीप जान, दोनों जाने आ जाओ, कोई बात नहीं, दिलीप खोलना है। हाँ जानिए
दिलीप जानिया, मैं understanding that दो जानिए because इधर। I took this session just for you, Jani, because you actually incited me to go for Dr. Segal's work again. Basic 3 मुझे delusion बताओ भाई, तुमने किताब पढ़ी है, and you to teach me 3 basic, और जिसमें सब अकेली बचेगी, क्या उसकी फीलिंग है, क्या डिल्यूजन है, क्या उसके एक फिक्स आइडिया है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है और वो आपसे बात नहीं मांगता. What he wants, darkness wants to lie down in a dark, and बस चुपचाप छोड़ दो उसे. जानते हैं ना ये 3 बेसिक डिल्यूजन दीजिए and you will be through, and there will be no rival, no competitor. दिलीप, चलिए मैं देता हूं. आपने इंजर्ड, आप जानते हैं डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड, जानते हैं. डिल्यूजन इज बीइंग बीटन. अलग ग्रुप, एक अलग पैक बनाओ सीधा, बॉक्स नंबर 1 में डाल दो. इज बीइंग बीटन, और बीन है लगातार तोड़ा जा रहा है, जार से आया है, इलैप्स रह गई इसके साथ. और तीसरा क्या है, डिल्यूजन सिंकिंग शीज. पेशेंट उठता है, ब्राइनिया को आप क्लासिकली जाइए, हाउ इट इज पेंटेड देयर. द लीस्ट मोशन एग्रेवेट्स, इट ब्रिंग्स अ स्टिफनेस, इवन टचिंग द occiput to the pillow will trouble her. If she raises the hand or she is lying down, while these movements both cause vertigo, चक्कर आते हैं, आप उसको सर्वाइकल लगाते हैं. She can't stoop, she cannot raise the head, has to be in bed. Least motion aggravates. This is the classical picture painted for Brainia. आप समझ रहे हैं, वो जिस स्थिति में वैसा ही रहना है. वो झुक गई तो मरती है, वो सर उठाती है तो मरती है, वो लेटने की कोशिश करती है तो मरती है. क्या हुआ सिंह, आपने क्या लिया सिद्धांत? सिंकिंग, डिल्यूजन सिंकिंग है नहीं यहाँ. क्या था, डॉक्टर सेगल ने दिया हुआ था, मैं निकालता हूँ उनके उसमें से. एक सेकंड. बेड होगा शायद, बेड सिंकिंग. हाँ, बेड में देखो ना, बेड बेड इज सिंकिंग, बेड इज सिंकिंग. हाँ, वही मुझे लगा, उसकी बेड सिंक कर रही है. हमने बहुत यूज किया है ना डिल्यूजन बीइंग इंजर्ड, पर हमने ना बीटा इतना यूज किया डॉक्टर कुलकर्णी, और ना ही सिंकिंग बेड को यूज किया. ठीक है जीतू, डॉक्टर जीतू, समझ रहे हैं आप? यस सर. ये इसमें दिया हुआ है, माय मास्टर हैज वर्कड ऑन दिस. तो हमें अभी किताब अपनी पढ़नी बाकी है. और ब्राइनिया नहीं पता, बताइए, उसकी धरती हिला दी उस ब्राइनिया ने हमारी. तो छोटा सा सर एक ऐड करूंगा, एक छोटा सा इसमें ऐड करूंगा. जैसे डॉक्टर प्रेम ने बताया भी था और सब लोग वहाँ थे भी जब सर बता रहे थे. अगर सिंपल भी हम लेते जो सर ने बताया, डिलीरियम होम वांट्स टू गो बहुत स्ट्रांग था. और डिलीरियम सर ने बताया वार्म रूम एग्रेवेट्स, है ना. इसके साथ अगर हम वो उसको एम्यूलेशन सिर्फ एक जगह से मिल रही थी, बाहर जाने से, है ना. डिलीरियम एयर इन ओपन एम्यूलरेट्स, सिंगल दवाई है ब्राइनिया. अगर इसी को मिला देते सिर्फ डिलीरियम होम वांट्स टू गो एंड डिलीरियम एयर इन ओपन एम्यूलरेट्स, एक ही तरह से उसको एम्यूलरेशन थी थोड़ी देर के लिए, वो बाहर जाने से हो रही थी. सिद्धांत सर, यहाँ पे वो बाहर जाने के बाद में एम्यूलेशन होता है, ठीक है, लेकिन बाहर जा नहीं पा रही ना. दैट वाज हर प्रॉब्लम. नहीं, उसने कहा ना, सर ने बताया थोड़े टाइम के लिए जब वो बाहर जाती थी
थर्ड टाइम के लिए एम्यूलरेशन होती थी उसको, जब वॉक करने ले गए, जिसको आप बार बार लाइट और फ्रीडम की बात कर रहे थे। हाँ बेसिकली जिसको आप कहते हैं कि लाइट और फ्रीडम है, वो एयर इन ओपन थोड़ा सा एम्यूलरेशन थी उसको। अच्छा, जो आप बोल रहे थे लाइट और फ्रीडम की बात। जी जी राइट। जी। हाँ, मुझे मेरा एक एनालिसिस ऐसा हो गया था शुरू में जब केस सुना सर से। जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट अभी तो एक केस क्लियर हो गई सर, लेकिन मेरा एनालिसिस गलत ही था, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा एनालाइज किया था मैं वो केस को कि गलत नहीं किया ना आपने, ठीक किया जितनी गलत नहीं किया। हम वी आर नॉट टेकिंग गलत और उसकी बात ही नहीं कर रहे। मुझे तो याद कराना है, मैं एक कोच हूँ जिसको आपको याद कराना है कितना वर्क बाकी है, कितनी शॉट्स हैं जो अभी भी आप नहीं सीख पाए हैं, जो लगानी है। जो शॉट लगाते हैं वो चौके छक्के लग रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी आर मिसिंग वेरी बैडली, और बड़े सिंपल है। इंजर्ड और बीटन, यार टूट रहा बदन, तोड़ रहा है कोई, बीटन और बीइंग बीटन लगातार तोड़ रहा है, इतने केसेस आएंगे। आप बोलो सर, आप बताओ क्या कह रहे हैं। जी सर मुझे एक लग रहा था कि जब हॉस्टल में थी वो शी वाज एंजॉयिंग द फ्रेंड्स, बाकी उधर की कंपनी एंजॉय कर रही थी, बट आफ्टर घर पे आने के बाद में जहाँ पे वो सब लोग पहले से पहचान वाले, फिर भी वहाँ पे माहौल ऐसा था कि किसी के साथ में ना ही कम्युनिकेट कर पा रही थी, वही इसमें अटक गए थे। किसी से बात करने का तो कितना करने का उनसे, वही बराबर ना, दैट वाज हर प्रॉब्लम। और उसको किधर तो एक ऐसा एंजॉयमेंट करना था, सब जैसे फ्रेंड सर्कल में जैसा रहता है वो टाइप का कम्युनिकेट करके सबके हंसी मजाक करना चाहिए था, ये टाइप का उसको एंजॉयमेंट चाहिए था। दैट वाज हर दैट वाज हर प्रॉब्लम कि वहां पे, और वो घर के बाहर भी निकल नहीं पा रही थी, बराबर ना। दैट वाज द सिचुएशन वाज एज इफ शी इज सीज्ड, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बराबर ना सर। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने फास्फोरस, एक मिनट वेरी गुड। सी व्हाट वाज हैपनिंग इज, मैंने ना तो डॉक्टर प्रेम के केस को लिया, मैंने सिर्फ आपकी ब्रायनिया की जर्नी को कोशिश की इस बुक को ले जाने, राइट। उसका कोई संबंध, मेरे रूब्रिक्स का कोई संबंध उनके साथ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट, मैं पहली बात, राइट। दूसरी बात क्या थी, यही दिक्कत होगी अनफॉर्चुनेटली। क्या था, व्हेन एनीबॉडी नरेट्स अ केस, और आपको बैकग्राउंड क्या दिया गया, आप इसी में, यही आपका कैच है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। व्हाट इज द कैच देयर, कि एक पिक्चर पेंट की गई कि आजकल लॉकडाउन है, आप लोग फंसे हुए हैं, सब लोग ऐसे हैं, एवरीबॉडी। तो ये क्या समझ में आ रहा है हमारे दिमाग में, वो इंप्रेशन, ये कहानी, दिस स्टोरी व्हेन अ मदर विल टेल, द पेरेंट्स विल टेल, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। आपको क्या, केस टेकिंग के 3 पार्ट है, सब्जेक्टिव सिम्टम व्हिच अ पेशेंट टेल्स यू, राइट, ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो आप एज ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, पीपल अराउंड द पेशेंट विल नरेट कि या सर ये कर रहा है, ये कर रहा है, राइट। ये हमारा सोर्स ऑफ केस टेकिंग है, जिसको हम पूरा करते हैं, सब्जेक्टिव, है ना, हाउ टू टेक अ केस, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो व्हाट हैपेंड वाज, वी ऑल प्रिज्यूम्ड लॉकडाउन है, ऐसा हो रहा होगा, सब फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकता है, कोई बाहर जा नहीं रहा है, ये आप समझ रहे हैं, ये प्रोस्पेक्टिव इवन डॉक्टर का भी हो सकता है, कैन, है ना, एंड देन यू आर अगेन लॉस्ट। डॉक्टर सहगल का क्या था, what she says and how she says, what she does, and ask her. अब क्या हुआ, again what happened was we all created a aura around the situation to give you a flavor. तो लगा यार गोल गोल है तो जलेबी ही होगी, अरे वही कुछ और भी हो सकता है। Are you getting my point? Because it was created like we are in a lockdown, we are here, people are not able to move around, everybody is stuck. यार एक मैं तो बहुत enjoy कर रहा हूँ, the freedom I have nobody has, all the rooms are mine, जहाँ मर्जी चप्पल उतार दो, जहाँ कपड़े मर्जी रख दो, जहाँ जुराब फेंक दो, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे मुझे लगा जब वापस लौटेंगे बड़ी मुसीबत हो जाएगी, I have to be restricted back to one room only. So everybody is not being troubled by so-called aura we have created around the situation. आप समझे कहाँ फंसते हैं, यही प्रेडोमिनेंस लेने में आपको। अभी I don't know it's gone wrong, कितने लोग भाग गए हैं बीच में से, आते हैं, are people there or they are gone? No, sir, 7 most of the people are there on the line.
है ना। और अभी मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, अभी मैंने एक थॉट प्रोसेस के अंदर लेके गया हूँ कि विचार कितने तंग कर रहे हैं, जो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं। एंड इफ दिस डिस्टर्बेंस गोज अवे, शी कैन हैव द रेस्ट। उसे, है ना, वो उसकी क्या डिजायर है, रेस्ट चाहिए, पर ये परसिस्टेंट थॉट्स तंग कर रहे हैं, ये डिजायर्स तंग कर रही हैं, विचार हैं, थॉट्स परसिस्टेंट ऑफ डिजायर्स इंजर्ड करेंगी। अब बदन टूटे, अब ये आदमी जब सुबह उठेगा जो रात को ढंग से सो नहीं पाया है, व्हाट विल बी द स्टेट? आप पूरे फ्रेश नहीं उठेंगे। लेकिन इसकी और मुसीबत थी, इसकी और दुनिया है। इसलिए आंख खुलते ही सनराइज में तो लगा यार फिर सवाल पूछेंगे, भाई तू रात को सोई थी? अब वो शीतल डॉक्टर सहगल उसे कहते हैं, जब पहली बार इसको खोलते हैं किताब की, इस पुस्तक को आप खोलोगे, व्हेन यू ओपन अप दिस बुक, यू विल गो थ्रू द जर्नी ऑफ दिस, हाउ ही ओपन्स अप द केस, एंड देयर इज अ ब्यूटी। आपको लगेगा दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल वे ऑफ टेकिंग अ केस, बट ही हैज डन इट। तो फर्स्ट रूब्रिक क्या देंगे वो? आप लोगों के पास बुक है? डू वी हैव दिस बुक प्लीज, ऑल ऑफ यू? यस सर। सीरीज 2 जब ब्रायनिया की बात कर रहे हैं, राइट? द फर्स्ट रूब्रिक ही सेज disturb averse to being, confusion of mind waking on। शुरुआती पहले दिन आंख खुलते कंफ्यूजन से, हाँ भाई क्या होगा, सुबह क्या है? unconsciousness morning waking on, and that takes her to the capricious state। वो आपको बता ही नहीं सकती उसे क्या चाहिए। और कोई उठे, क्या करते हैं? यू टेक अ ब्लडी यॉन। ब्रायनिया एक सब बहुत बड़ी दवाई है जिसको यॉनिंग से बड़ी मदद मिलती है। जो बदन टूट रहा होता है, जो बदन टूट रहा होता है, कैसे रिलैक्स करते हो? सवेरे उठते हो, अभी यार रात सोए थे लेकिन बदन टूट रहा है, तो एक फ्रेश एयर व्हेन इट गोज इन, यॉन करने से आप उस कंफ्यूज, पूरी ऑक्सीजन जब ऊपर जाती है, ओपन एयर जाती है, एक कूलनेस आती है, टेक्स अवे दैट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। वो डिल्यूजन, वो डिलीरियम थोड़ा सा हटता है, वो बेटर स्टेट में आ जाता है। दिस इज हाउ डॉक्टर सहगल ओपन। एंड दो चीजें आराम देती हैं, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, इरेक्टेशंस एंड यॉनिंग एमलरेट। डकार आ जाए तो यहां से हल्का हो गया। चलिए, ये ज्यादा तंग करेगी। अब when I started writing this journey, I wrote this medicine under perseverance. You remember, Ritu, if you take another book from us which says perseverance, and Brainia perseveres. You remember this? We have 23 remedies there. And what is this persevering has to do with? A patient comes to you and he says, doctor, I give you a small patient, perseverance. And just put perseverance and ask for nothing. कुछ नहीं मांगता, ठीक है यार, परसिवर कर रहे हैं, सह रहे हैं भाई। An unfortunate feels, yeah, unfortunate feels, कुछ नहीं मांगेगा। क्या बचा भाई? हेलो डॉक्टर जी, तो देख रहे हैं आप? क्या लोग ऐसा आप कितने लोग बोल रहे हैं वर्ड यार, बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट है सर, सब बंद हो गया, सब कुछ खराब हो गया, बोल रहा है, कितने लोग नहीं बोल रहे? और सब हम मांगू क्या, किससे कहूं कि तनख्वाह दे दो? यार वो बेचारे के पास खुद ही नहीं है, दुकान ही नहीं खुला तो हमारी पैसा कहां से देगा? और अपनी भी चिंता है, कैसे खाएंगे? पॉवर्टी का डर बहुत ज्यादा है, आगे काम धंधा कैसे चलेगा? एंजाइटी बिजनेस की है और पॉवर्टी का डर है, फियर ऑफ पॉवर्टी।
and fear of suffering. वो गरीबी जो दुख लाएगी साथ में. This was how Dr. Sehgal, and that's why क्या कह रहे हैं सर, कुछ नहीं, चुपचाप परसेवर कर रहे हैं. अब डालिए इसमें दो उसके दुख डाल दो, उसके फियर उसके डालिए, फियर डालिए. Fever of poverty, fear of suffering. दूसरी तरफ मन क्या है? अब अगर दो बेसिक रूब्रिक जो मैंने आपको दो दिए, क्या है? डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड एंड बीटन. एक तरफ वो टूट रहा है और एक तरफ तंग हो रहा है, और उसमें क्या चाहता है? रेस्ट. अब ये इसमें डाल दीजिए 3 रूब्रिक्स और. रेस्ट, डिजायर फॉर, डिल्यूजन इज बीइंग बीटन एंड डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड. ये सब मिलेगा. आपका पेशेंट ऐसे ही बोलेगा. फिर भी ये बेड से भागेगा, उतनी बेचैनी होगी. डॉक्टर कैन लिखते हैं, so restless as ours and he has to leave the bed. Beaten, Siddhant. Beaten is being beaten. On one hand, he wants rest because he's injured and beaten. He fears that if he moves, the least motion will aggravate him, and he doesn't want to bring up suffering. And अब सिद्धांत डालना, अगर तुम्हें याद है वो रूब्रिक जो उसको बेड से बाहर ले जाते हैं. Anxiety bedding, anxiety driving out of bed. This will be very important, where I will be taking you to the basics of Dr. Segal's system, where we talk of present, persisting, and predominating. There are hundreds of rubrics and feeling in a mind of a man. It's a machine which emits many informations. पर आप किसको लेंगे? Which is predominating? और वो क्यों करता है? नहीं, उसके साथ मिलाओ सिद्धांत, उसी में डालो, उसी बॉक्स में डालो. Please, Dr. Siddhant, can you put in number 8, where we have 8 rubrics there? लोग घटे तो नहीं भाई? आते, right? आप उसमें डाल, जिसमें 8 रूब्रिक्स हैं उसी में डाल दीजिए. जहां बीटन है, जहां इंजर्ड है, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड. आर्ट्स के मुकाबले खड़ा है. If we just stay to the classical, we'll be stuck sticking and looking for people. And I should डाल दो darkness. एक 11वां सिम्टम डाल दो, darkness wants, है ना? वो एक तरफ इतना उसे अंधेरा चाहिए कि वो कुछ मूव नहीं करना चाहता, रेस्ट चाहता है. जरा सी भी इमोशन उसको एग्रेवेट करती है. That is how we've been taught in classical. But when I look into the repertory, he leaves the bed. He's that restless as ours. Which way? Why it wins and what wins in this game? The desires are there. What he desires lies down in the dark and not to talk to someone. That is, can you complete the rubric? Isko open karna hai, Siddhant? Just open the rubric for a while. Lie down in the dark. I lie down in the dark and desire not to be talked to. And not to be talked to. Ichha kya hai? Ye padhiye. So this is a desire. And the beauty of Dr. Sehgal was, when he was explaining us these rubrics, nobody touched them this way. Everybody said mind is important. Hundreds and thousands of people are using mind. They need the mind from us. That's why Dr. Sehgal said, all right, you don't do our way, you don't follow the Dr. Sehgal way, but at least you need the mind. And if you need the mind, you have to take help of repertory and the system we are teaching you. Desire kya hai? Dr. Sehgal defined desire: a wish may or may not be fulfilled.
Hi, Jitu, this is the definition, Dr. Jitu. What was the definition Dr. Sehgal gave you? A desire which may or may not be fulfilled. इच्छा है पूरी हो ना हो. इच्छा है ना कि अकेले में पड़ा रहा हूं, अंधेरे में हो जाऊं. इच्छा है रेस्ट कर लूं. I have a desire, I want to rest. But क्यों नहीं होता? वापस चले. Can the screen 11 रुब्रिक खोल दीजिए डॉक्टर सिद्धांत प्लीज. Can you open those 11 इवन इसमें rubrics एक for और us? इवन इसमें अगर वो भी डालें, सिर्फ रेस्टलेसनेस ड्राइविंग आउट ऑफ बेड भी, एंजाइटी से नहीं. हाँ, रेस्टलेस भी डाली. उतना बेचैन है जितना आर्स. And this is our delusion. This is we are fixed in pictures where we just see ours. Restlessness driving out of bed. That will break our prejudices. This is what Dr. Sehgal wanted you to do. Why he insisted on this system. His aim was, because master's first prerequisite was unprejudiced observer, which never carry any picture in the mind. It is the only help from repertory that we can break our prejudices about the remedies, the pictures we've been painting for years together. We have read from Materia Americas, different sources, but this helps. So it is driving Brainia like Restox out of the bed. We had only distinction given restless, try or restless is arts and Restox, where Brainia least motion aggravates. And we embed that in the mind of the youngsters. यार वो हिला और हिल रहा है तो फिर तो ब्राइनिया हो ही नहीं सकता. No, it's not. अब आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. That was the beauty of Dr. Segal's work, that he says what predominates. अब आप याद कीजिए, आपकी इच्छा है. इच्छा है आइसक्रीम खानी. I want to have an ice cream. You have another desire. I want to have a chocolate. पर आप बच्चे को कहते हैं, but child says, Papa, I see a dog outside. डॉक्टर कुलकर्णी, डर आ गया कि बाहर जाऊंगा कुत्ता काट लेगा. तो कौन ऊपर आएगा, डर या इच्छा? कौन जीतेगा? डर. बैठ जाएगा वो. सर मैंने कितनी भी इच्छा में लेके बैठ गया, जब तक कुत्ते को नहीं हटाओगे, मम्मी आप साथ नहीं आओगे, इफ यू नॉट अकम्पनी मी आई विल नॉट गो. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुली डॉक्टर सेगल एक्चुअली कुड सी एट दैट. वो उस परमात्मा ने इसको सन 67 में कैसे देखा होगा. 67 आई एम टॉकिंग ऑफ 20 and so many years back. He could visualize this is Brainia. 50 साल पहले वो जर्नी आपको देगा ही. फर्स्ट सेकंड बुक है लाइफ की. अभी खोलो डॉक्टर सिद्धांत. कैन यू ओपन द, एंड आई विल गिव यू व्हाट इज हैपनिंग देयर. It is so beautifully happening that you will be really understanding. Fear क्या है कि अगर काम पे नहीं गया तो गरीबी आ जाएगी, और गरीबी आ जाएगी तो दुख आएंगे. तो दुख ना आए, गरीबी ना आए, इसलिए बेड छोड़ देगा. रेस्ट और है ना, she will leave the bed because that has made her so restless. रात को विचारों ने नींद नहीं आने दी, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं. इससे अच्छा काम पे चलेंगे, कोई 4 पैसे तो कमा लाएंगे. सर आपकी फीस भी दे लेंगे. हाँ ना, हाफ डे भी अगर चला गया मैं काम पे, इट विल वर्क. अ पेशेंट टोल्ड मी, डॉक्टर कुलकर्णी, he promised me that he will not take the drugs he was on, maybe painkiller for other things, है ना, for a fever or antibiotic. promise किया, सर आपके साथ चलना चाहता हूँ. he wanted to persevere, take homeopathy. I want to be cured. आते हैं पेशेंट, tell you and they make a promise. वो बोला सर फ्राइडे रात को दोबारा हेडेक माइग्रेन शुरू हो गया था. खुदा कसम आई डिडंट टच एनी मेडिसिन. सर मैंने बियर किया. सैटरडे भी सर किया, संडे भी किया. धीरे धीरे संडे की शाम आनी शुरू हुई. माय फियर, माय वरी स्टार्टेड. तो पहले क्या कर रहा है, परसीवियर कर रहा है, बियर कर रहा है, सहने की कोशिश कर रहा है. व्हाट इज परसीवियरेंस? परसीवियरेंस कीप मेकिंग एन एफर्ट. डॉक्टर सेगल कहते थे टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कोऑपरेट करना चाह रहा है. हल्ला भी नहीं मचा रहा. यार मैंने हल्ला मचाया तो लोग फिर परेशान होंगे करके क्वाइट हो जाता है. ठीक है, डिस्टर्ब ना होके अपना कप लिया, डार्क में लेट गया. क्वाइट वांट्स टू बी, डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब. सॉरी, डार्कनेस डिजायर्स, डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब. वाई द, अब उसको विचार तंग करने, विचारों की श्रृंखला शुरू होने वाली. बीच में आई टुक, यार अब कल भी ना गए. सो बिकॉज दिस इज अ सरकार, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफिस, फ्राइडे सैटरडेज
Saturday, Sunday is off. I could somehow manage my half day Friday, and I could just put my attendance and request and came back home कि मुझे सर घर जाना, थोड़ा जल्दी चला जाऊं. So Friday was all right. Saturday was all right because off day. Sunday भी है. अगर Monday नहीं गया तो पिछले 4 दिन की छुट्टी मेरी काउंट हो जाएगी. तो Monday तो मुझे जाना है. Sir, it was Sunday. Your clinic was closed. अब मुझे लगा रात हो गई है. 12 बजे तक जब मैंने विचार किया कि अब अगर रात ना सोया तो मंडे आई विल नॉट बी एबल टू गो टू माय वर्क. मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा. चिंता लग गई. नहीं गया तो 4 दिन की वेजेस कटेंगी, है ना. ये सब डर ने क्या कराया उससे काम हो गया. बोला सर मैं क्या करता. मैंने कोशिश की 1-2 बार, आपने फोन नहीं उठाया बिकॉज इट वाज संडे. सो व्हाट आई डिड, I was so anxious that यार ऐसे तो डॉक्टर साहब तो उठा नहीं रहे, मैं परेशान हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा था. He was angry. What he did, anxiety compelled to do something. उसने सर मैंने एक क्रोसिन ले ली, मैंने एक पेन किलर ले लिया, मैंने पूरा डोजेस अभी भी नहीं ली सर. I want to continue. That's why Monday evening I am with you. वो perseverance फिर चालू हो गया. It started again. There was a gap in between the perseverance where he has a compelling situation which says anxiety compelled to do something. उसको लगा compulsion हो गई भाई मेरी से. They were so compelling that I have to do this. इसको अलग बॉक्स में डालो. Perseverance and anxiety compelled to do. पहले persevere कर रहा था, 2.5 दिन निकाले ना. मैंने उससे डॉक्टर सहगल asked me this only. Don't be angry with your patient. भाई आपको कहा था कॉपरेट करो, आपने दवा बीच में खा लिया यार, ऐसे कैसे चलेगा, बस और 2 दिन वेट करना था. हम पेशेंट पे नाराज हो जाते. डॉक्टर सहगल नहीं होते. बोलते तो उसने कुछ तो किया. व्हाट इज अ गोल्डन रूल, ही सेड. व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज, व्हाट ही डिड एंड हाउ ही डिड. पहले पोर्शन में 2.5 डे ही परसिस्टेड. उसने परसिवियर किया. क्या किया, आप लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं. पहले 2.5 दिन उसने ही परसिवियर्ड. तो अभी भी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट ही डिड एंड हाउ ही डिड. क्या करता है, कैसे करता है, व्हाट ही सेज एंड हाउ ही सेज. ठीक हुआ. अब क्या इसमें ऐसा क्या मुसीबत फंस गई कि यार सर वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, दर्द भी बड़ा था, तंग तो मैं था, परेशान तो मैं 2.5 दिन था, इंजर्ड तो था, तो डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड. तंग तो मैं हो रहा था, परेशान हो रहा था, बदन टूट रहा था. बीटन, डिल्यूजन इज बीइंग बीटन, डिल्यूजन इज बीइंग, है ना, इंजर्ड एंड परसिवरेंस. फिर भी सहा. ये दोनों रुपये डालिए, सहने के साथ कंटिन्यू किया आपकी ट्रीटमेंट. आपके कहने के, आपके वादे के मुताबिक वो प्लेसिबो खाता रहा. उस बेचारे को तो पता था दवाई है. कंपेल को बाद में डालते हैं, एंजाइटी, है ना. परसिवरेंस in spite of being injured and beaten. लगातार हो रहा था उसके साथ. He persevered in spite of being injured and beaten. क्या बचा, कोई बहुत मुश्किल काम है. डॉक्टर सहगल इतने सुंदर रास्ते दे गए, सिर्फ फोकस किसके किया है, डॉक्टर कुलकर्णी क्या किया. 2.5 दिन काटे सर, तंग भी हो रहा था, टूट भी रहा था. पूछो मत सर कितना सहा है. क्या हुआ, बीटन भी था, इंजर्ड भी था, सहता रहा. अब बाद में सर क्या है, व्हाट टू डू. जब रात 12 बज गए और लगा अब भी आपकी दवा से कोई असर नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द है, सुबह मैं काम पे नहीं, अब वर्क, अब मुझे वर्क, मेरी ड्यूटी, मेरा काम याद आ गया. ना गया तो सर खाना भूखा, अब मेरे को दिक्कत पड़ जाएगी सर, वो तो मुसीबत पड़ जाएगी. वेजेस काट लेगा मालिक, कहेगा चल 2 दिन तो छुट्टी दिया था, यह सरकार की छुट्टी होती है सर, फ्राइडे सैटरडे संडे आप लगा सकते हैं. इफ यू मिस मंडे इट विल बी काउंटेड, को 4 दिन के पैसे कटेंगे. सरकार का अपना रूल है. जो हॉलीडे है, इफ यू ऐड डे बिफोर. इसी लोग कहते हैं सर आदि मुझे छुट्टी दे दो, मैं 2 घंटे ड्यूटी लगाता हूँ मंडे मॉर्निंग की, फिर आ जाऊंगा, गिव मी हाफ डे. अब वो क्या करेगा, अब ये ब्यूटीफुल रूब्रिक डॉक्टर सहगल ने कॉइन किया, जिसको उन्होंने क्या कहा था, चूजेस द लेसर इविल. वो सफरिंग सह लेगा पैसा बचाने के लिए. सफरिंग, है ना, बीटन भी सह लेगा, इंजर्ड, इंजरी, बीटन और सफरिंग को, फियर ऑफ सफरिंग भी छोटा पड़ जाएगा क्योंकि फियर ऑफ पॉवर्टी बड़ा है. वो वापस फिर सफरिंग लाएगा. सो हिज डिजायर टू रिमेन इन बेड, सॉरी, डिजायर टू हैव अ रेस्ट
desire for that darkness takes a second seat, and the predominant was the fear of poverty. So that, because that rules the kingdom, it becomes the head. Then he leaves his comfort zone, he leaves his bed, and he has to. अब आप सोचिए कैसे एक आदमी जो रेस्ट तो चाहता है, डार्क भी चाहता है, तंग भी हो रहा है, बदन भी टूट रहा है, बुखार भी चढ़ा है, फिर भी काम पे जाता है। बोला सर आधी दिहाड़ी मिली, 3,000 रुपए की मेरी 80,000 की पे है, आधी दिहाड़ी मिली तो भी 2,000 आए सर, बच्चों का खाना आ गया और आपकी फीस आ गई, मर मुरा के धक्का खा के शाम को पहुंच ही जाएंगे, आके फिर रेस्ट कर लें और आपकी दवा भी खा लेंगे, फिर रेस्ट कर लेंगे, फिर परसिवरेंस के साथ रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट, डिजायर एंड परसिवरेंस। मैं सर इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक गोली खाई। अब आप जीनियस बैठे, मुझे बताइए इस एक्ट को कहां डाला डॉक्टर सहगल ने? उसने एक पैरासीटामोल ली, he took only 1 dose of paracetamol or any painkiller or only a crocin just to, but not a complete medication of 5 days or 3 days antibiotic. He never ऐसा भी कर सकता था और फिर लौट सकता था, तो भी परसिवरेंस में चला जाएगा कि वापस लौट आया कि सर क्या करता, मुसीबत थी, आप अवेलेबल नहीं थे, 4 दिन आपका क्लिनिक बंद हो गया। उस स्थिति में यहां तक जा सकता था कि वो एंटीबायोटिक भी खा जाता, बाद में 5 दिन का कोर्स करके फिर लौट आता। परसिवर, ही इज अगेन रेडी टू परसिवर विद यू। बट इस स्टेट को कहां डालेंगे जहां उसने एक गोली खाई कि सर पता उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो फिर वही है, चूजेस द लेसर इविल। दोनों में से पूरा ना खा के थोड़ा ले लिया। लेकिन एक रूब्रिक और खड़ा है जो डॉक्टर सहगल की ब्यूटी थी पहचाननी। बहुत भारी हो गई क्लास, अभी तो मैंने सिंपल 4 लाइनें पढ़ी हैं। ब्राइनिया को 3 दिन चाहिए मिनिमम, और अभी मैंने मेरे पिता के सिर्फ 1.5 पेज पढ़ा है, 1.25 पेज इस बुक का। वो क्या रूब्रिक है भाई, कोई खोलो भाई, किसी रैंडम किसी से पूछो सकता। धीरे धीरे 67 रह गए, 3 लोग चले गए। विजय को खोल लो, चलो जीतू विजय को निकालो, कहाँ है? डॉक्टर रमेश कटोच है। कहाँ? रमेश कटोच को ले लो, सुंदर रमेश बाबू को ले लो, डॉक्टर रमेश कटोच। आपके दादा, आपके पिता एक बहुत बढ़िया रूब्रिक देके गए भाई, जो पेशेंट ने किया, कहाँ फोकस करना है, व्हाट ही डिड, हाउ ही डज एंड व्हाट ही डज, व्हाट ही सेज एंड हाउ ही सेज। वेरी गुड, ये तो बड़े नेता बैठे हैं। क्या किया उसने? डॉक्टर सहगल की सोचो, क्या सोच गई होगी। 67 में सोच रहे हैं वही। एस्केप अटेम्प्ट्स भी फ्रॉम विंडो। ओहो, ग्रेट, वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपके पास दरवाजा है बाहर जाने को, आप खिड़की से क्यों जा रहे हैं? और दरवाजा क्या है? दरवाजा है प्रॉपर एलोपैथ के पास चाहिए, 5 दिन एंटीबायोटिक खाइए, पूरी ट्रीटमेंट कीजिए, वो दरवाजा है, बाहर निकलने का रास्ता है। फार्मेसी नहीं, देयर इज अ डोर। नॉर्मली आदमी कहां से जाता है? समझ लो, हाउ मेनी टाइम यू हैव सीन पीपल एस्केपिंग फ्रॉम एस्केप। सर मैं ये क्या सर एस्केप था ना, माइग्रेन था, सहन नहीं हो रहा था सर, बचना था, क्या करता? सो आई ट्राइड, मैंने सर पूरी आपके हाथ, आपको सच बोल रहा हूँ भगवान कसम, एक गोली, आधी गोली खा के काम चला लिया, पूरा ना देखे, प्रॉपर दरवाजा ना यूज करके मैंने विंडो से काम चला लिया। विंडो से आप कब खिसकते हैं, कब आप एस्केप किए? कितने लोग मिल जाएंगे वो आपको बोलेंगे दीज आर मेंटल स्टेट व्हिच आर सीन इन द सैनिटोरियम, जहां पीपल वर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, है ना, पेशेंट अंडर द हु वर फोर्सफुली chained into the house, mental hospitals, they try to escape through window. और बाद में कहेंगे these symptoms are least reliable because they are coming from a mentally deranged person, so mind, we can't depend upon mind symptoms. So इसका यूज कहाँ करोगे? कब देखा आपने जिंदगी में कोई इसके आज तक देखा कि somebody is trying to escape from window? हाँ मैंने देखा है, प्रैक्टिकली हैपन हुआ। एक बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था, जगह कम पड़ गई तो लोग सीढ़ियों में बैठे थे। एक आदमी को लगा यार शाम को क्लिनिक पे जाना है, बॉम्बे के लोग ऐसे करते हैं, सर मी चले, चलो सर मिलते हैं कल।
5 बज गए हैं, वो पेशेंट के पास जाना है, उसको लगा अगर सब रोकेंगे, सर बड़े खतरनाक हैं, आगे से गई तो पकड़ा ही जाऊंगी, वो चुपचाप खिड़की से कूद गई, क्योंकि काम उसको जाके अपनी लोकल पकड़ के बिजनेस पे पहुंचना था। टॉक्स ऑफ बिजनेस, वरी अबाउट बिजनेस, और एस्केप फ्रॉम विंडो। ये हुआ 2 बार घटना घटी है मेरे साथ, एक बार स्लोवाकिया में, एक बार बॉम्बे। तुम्हें बोला भाई इतना दम था, मैं सर थोड़ा रोक लेंगे, आप दरवाजे से निकल जाती। बोली सर वो भी तो आपको पता चल जाता, मुझे तो अपने काम पे जाना था। सर आई सिट देयर एंड आई एम वर्किंग, मेरी वहां परेशानी हो जाएगी। सो आर यू विद मी? क्या समझ आता है कि हम लगा सकते हैं एस्केप फ्रॉम विंडो? कदोज साहब क्या कहेंगे आप? खोल दो। बहुत बढ़िया सर। नहीं बढ़िया नहीं कहना, आपसे समझना है कि वो आपके पिता क्या सोचते थे। ग्रेट। वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप लड़ोगे पेशेंट से, हम क्या करते हैं या हाउ कैन वी ट्रीट यू, आप बीच में एलोपैथी खा जाते हो। वो बेचारे कुछ नहीं कहते थे, बोलता जो मेरा पेशेंट कर रहा है वो राइट है। समझना ये, बस उससे प्यार से पूछना, बेटा तूने ऐसा किया क्यों? अच्छा तू मुझे छोड़ के, यू लेफ्ट मी एंड यू केम बैक। वो दोनों धागे पकड़ लेते थे। सर बड़ी कंपल्शन थी, क्या करूं, 6 महीने बाद लौट रहा हूँ, आपकी तबीयत दवाई खाई थी बड़ी खराब हो गई, मुझे एलोपैथी खानी। वेरी गुड। वो नाराज नहीं होते थे, अच्छा क्या वजह हुई बेटा तू मुझे छोड़ गया, और आज क्या फिर मेरे पास ले आया है? सर पता ना यार, उससे तो आराम आना ही नहीं है, ठीक तो होम्योपैथी से ही होंगे। तो व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज, व्हाई ही डिड एंड व्हाई ही इज डूइंग नाउ। आपकी चाबियां ही, देयर इज अ बेसिक 2 keys एंड देन यू हैव टू सी द प्रीडोमिनेंस। तो इसमें से कोई भी सर उठा लेगा रूब्रिक, अब रेस्ट पीछे रह जाएगा, अंधेरे में पड़े रहने की इच्छा पीछे रह जाएगी, आप समझ रहे हैं, क्या जाग जाएगी, कंपेल्ड टू लीव द बेड, वो छोड़ेगा, रेस्टलेस, मस्ट लीव द बेड एंड गो एंड गेट सम मनी सो दैट पॉवर्टी डजंट डिसेंड। तो फियर ऊपर आ गया, इच्छाएं पीछे रह गई। दिस व्हाट यू हैव टू नाउ लर्न इन द लाइफ व्हेन यू सी व्हाट प्रेजेंट, परसिस्टिंग एंड प्रीडोमिनेट्स इन अ केस। क्लियर है? चलिए रात के 11:30 बज रहे हैं, है ना, मेरा आपसे विदा लेने का समय हो गया, क्योंकि मुझे अपना खाना बनाना होगा, अकेला हूँ। दान ने तो कहा था 9 बजे तक खा लेना, लेकिन भूख नहीं लगी। बॉम्बे तो खैर जागता ही रात के 12 बजे, बिकॉज आगे कुआं पीछे खाई, तो उसको लगता है कि पावर्टी आ गई, सफरिंग आ गई, वो ज्यादा बड़ी है, थोड़ी देर के लिए पेन सह लो, दर्दें और सह लो, बीटन फीलिंग और ले लो, बुखार सह लो, काम पे चलो। चलेगा? थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Full journey of Brian. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Prem, sir. Very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Prem, sir. Thank you, sir. बेटा कैसे Thank लगा? you, sir. And Sanjay, sir. छोड़ो, थोड़े से लोगों को छोड़ो, कौन नए हैं, पुरुषों को बेचारों को ज्यादा तंग नहीं कर दिया, भारी कर दिया मैंने। Thank you, sir. How difficult it was them, क्या मैं इसको आसान बना पाया आप लोगों के लिए, क्या आप समझ पाए इसे? Yes, sir. Yes, sir. sir. बहुत अच्छा। जी गुप्ते, कौन है ये गुप्ते? दमयंती गुप्ते। मे बी शी। जी, does it make a sense for you, Damayanti? Yes, sir. Yes, sir. Comprehensible. Could you comprehend something? Does it make Yes, some sense sir. for you? How to just? Yes, sir. It's like a puzzle, huh? And you have to just put the bits together to make a sense out of that. So when you say it, it seems simple, but it's a little difficult for me. It's my first time here. Was it easy for you when first time you started driving a car? No, it wasn't. Yes. And when first time your mom put you in the kitchen, was it that very easy for you? No, it wasn't.
Same is here. It's true, sir. We want to learn, sir. That's on you. I don't know how much heart you keep in and how much you want to really persevere. This remedy is all bearing the pain and suffering and to persevere. That's why I chose this remedy. You have to sweat out Yes, sir. to be a strong soldier. So that